We are back with Lions Unleashed, the Legacy series. Today's guest is a proof that secret of staying young is not just by going to the gym, but also keeping up with the times. He's like the iPhone, हर generation के साथ upgrade होते रहते हैं. He believes that change is not scary, it's exciting. He even pushes his younger ones to explore new things. He's the visionary who turned his business into a household name, the man behind City Gold Tea. So iconic, that even Mukesh Ambani had once mentioned his brand in one of his speech. And today, his tea is literally everywhere. From the shelves of Army CSD and Indian Railways to the counters of Indian Oil, Reliance, Walmart, Amazon, Flipkart, JioMart, Swiggy, Instamart, you name it, he is there. But he didn't stop at tea. He made City Gold spices, he built real estate projects, and kept raising the bar. He has been honored as an icon of North Bengal Business Award winner. His excitement level is always 100%, whether it is Lions Ka project, any dinner plans, or any new travel plans. Traveling, that's his true love. He has visited more than 46 countries till now. But if there is any conference anywhere in the world, consider him either booked or boarded. He's not just a leader, he's also a devoted son. The name itself symbolizes his character, Shravan Kumar. He has always been known for the way he took care of his parents with so much of love and dedication. In Lions, he's not just a member, he's a leader. A past district governor, LCIF area leader, CSSR regional head, and winner of multiple international president medals, leadership awards, and certificates. And beyond all these titles, he's a super jolly person and he's a very good singer. So, ladies and gentlemen, get ready to welcome the ever smiling, ever charming Lion Shravan Chaudhary. Thank you, Rasmi, for giving me this opportunity in the Lions Legacy program. It is a great honor for me to be part of this. So it's honor Thank for you so everyone. much. Sir, I'm going to ask few questions and you have to answer them very honestly, sir. Okay. So you have to hit this gong like this and you have to say, मैं जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा. मैं जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा. Okay. Are you ready, sir? Yes. Tea without sugar or life without travel? So, tea without sugar is okay, but life without travel and without sweetness, it's not enough. That's great. Which Lion member would you never challenge in a debate? Lion member, Yeah. Nirmal Gidra. Oh, Lion Nirmal Gidra. It's a big compliment for you. Yes. If Lion had a most stylish award, would you take part or you be the judge? I'll take part. Great, sir. Yes. That's a motivation for all of us. If Podin Hara is missing from the table, क्या होगा sir? एक्चुअली फूडी हूँ. डेफिनेटली मेरे को शौक बहुत है अलग अलग क्विजिन ट्राई करने का. सो खाता भी हूँ और फिर तकलीफ भी पाता हूँ. देन वी नीड द पुदीन हरा. नहीं होता है तो थोड़ी देर परेशान रहते हैं. बट ट्राई टू गेट ऑलवेज कैरी विथ मी. Okay, that's great. Which is more difficult to say no to a party invite or a Lions meeting? सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. दोनों जगह कैसे प्रेजेंस रहे. टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मैनेज करते हैं. बट व्हेन आई एम एज ए लायन आई ट्राई टू बी देयर इन द लायंस मीटिंग. Okay. और उसके बाद तो पार्टी हार्ड होनी चाहिए डेफिनेटली. Yes. Tea for one or tea for everyone? टी फॉर एवरीवन. Okay. Yeah. Because if everyone takes tea, that is the future of our business and whatever we are serving. Yeah. So definitely व्यापार सबसे पहले है ना. उसके बाद तो सेवा कर पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल and that's why you make tea for every bhabis whenever you are in any catering. I've heard this. Yes, yes. One Lion you can always count on for last minute work. Yeah, last minute work in our district or in our club. So we have so many members. Now our president Lion Manish Agarwal. He is a person whenever we need and whenever last moment work, I give him to the responsibility for the responsibility. He's every time he's ready to take that challenge. Lion Manish Yes, Agarwal. yes, Is Agarwal. Is My Lion Manish Agarwal should get a reward for this. Yes. Most stylish lion of the year you have ever met. stylish lion around the lionism. That is Raju Manmani.
He is a PID, past international director from Mumbai, and he is the most stylish what I have seen in my Raju Manmani. He is a past international. Again, the PDG lion Raju Manmani. Yes, It's a big very compliment. stylish, and he is very dedicated to the Lionism. Okay, okay. Yeah. If you enter the kitchen, sir, by mistake, will you take selfie or you'll just come out? I have heard that you don't enter into the kitchen. Yes, I don't go into that kitchen. That only once I remember at the time of COVID. Okay. I had a little try for that, but after that, I don't think I have entered into the kitchen. Yeah, you only enter when you have to make tea for Barbies. Yes. No, I try, but I try to avoid that also. Okay. Because the kitchen work I don't like, but I want to have the various foods. But बनाना पसंद इतना नहीं है, खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. Yeah. So कभी-कभी होता है, उसको कंप्लेन भी रहती है. You don't take care. कभी मन करता है कि भाई बना के लाएं. So very मुश्किल से बना लेते हैं कभी-कभार. Okay. Which is harder, running a business or running a district? So both are is a different aspect, because running a district is a very challenging because you are committed. So वहाँ पे आपको अपनी कोई भी चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो बिजनेस में कर सकते हो, because that is your individual liability and individual thing. But whenever you are taking as a responsible district governor, you are taking the charge of an entire district and the entire Lions fraternity, around 4,000 members. They have their expectations and you have to come up with that. So this is the biggest challenge, to become a district governor, to take all the responsibility of the club level, also district level and multiple level, and the Lions, whatever we have given the ethics of Lionism, that we have to maintain for that. It's a very challenging, and I think people should enjoy that also. Yeah, sir. Very true. Very. Yes. First thing you would do when you land in a new country? So before landing or after landing? After you land in a new country? Yes, just I feel out of the world, because whenever I enter to the new country, just it is added to my list of the countries, and I You think that update your profile Yeah. by in them. no, profile is okay. That is afterwards, but I feel that something new I'll explore. Okay. That is the best part, because whenever I go is in any country, everything are almost same. But you find every country something different from the others. Right. They have the specialty, exclusiveness. Yeah. That I find that I'll get something new people, new culture, new things as a you can say the new things that country have the unique things. Yeah. So that I find कि हमें वो स्पेशलिटी देखनी है. Yeah. बिल्कुल. बाकी देखिए नई कंट्री जाओ, कहीं भी जाओ, आज इंडिया भी हमारे कोई भी जगह जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी सब चीज़ हमें मिलती है. बट हर कंट्री की कुछ जो स्पेशलिटी है कुछ ना कुछ something उसको मैं कुछ कोशिश unique point एक्सप्लोर करते हैं. करने की कोशिश करता हूँ. दैट इज माई ड्रीम, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट I think 150 countries are behind. Like Yeah. you have already explored, no? 46. Yeah, 46, but not only 150, but if I remember, more than 150 cities of the world I have traveled. Because So this is a country as well as the cities. So in my list, next year I want to complete my 50th country. That is my dream. और उसके बाद कितने जा More पाएंगे? countries to go. Yes. Exploring new countries, meeting people, new people, and country wise जैसे लायंस में भी बहुत जुड़े हैं. जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाते हैं तो हर कंट्री से लोग मिलते हैं. इस साल हमें बहुत तो से सर कंट्री इतने सारे कंट्रीज आपने घूमी तो मतलब बेस्ट आपको कौन सी लगी, उनकी क्या बात लगी उस कंट्री की? कंट्री वाइज देखिए सबकी अपनी स्पेशलिटी है, बट रिपीटेडली मेरे को अगर जाने के लिए कोई बोले तो आई लाइक लंदन. ओके. लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस. वहाँ जाकर के होमली भी फील होता है और एक नयापन भी, रिलैक्स फील होता है. क्या मेमोरी है? और मेमोरीज इट्स अ वॉक करना पसंद करते हैं. लंदन जाके मेरे को गाड़ी वगैरह ज़्यादा वो नहीं है, वॉक करते हैं. गोल्डन गेट पे वॉक कर लिया, कहीं भी जा रहे हैं तो वॉक करने का वहाँ एक अलग मज़ा है. बिकॉज और एंड यू फील वेरी क्लोज टू योर इंडिया.
कई चीज़ों में, और फिर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप दूसरी कंट्री में भी हो। Okay. वहाँ का कल्चर, बहुत सी चीज़ें You हमारी feel very homely. होमली के साथ-साथ आपको एक नया वो भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। Okay. सो आपको कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी कंट्री में आप जा रहे हो, आपको फूड अच्छा नहीं मिल रहा है। Yes. किसी कंट्री में आप जा रहे हो, वहाँ के लोगों से बातचीत करने का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। Yes. किसी कंट्री में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें देखिए अच्छी भी है, तो कुछ जगह में डिफ़िकल्ट सिचुएशन का भी सामना। बट लंदन इज़ अ वेरी कंफर्टेबल, कन्वीनिएंट इन एवरी पार्ट। Okay. सो You have become very comfortable in यस, London यस। now. और बाकी तो सीनिक ब्यूटी और वो सब चीज़ों के लिए तो बहुत है। स्कैंडिनेवियन कंट्री मैंने जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह गए। दोज़ आर फैंटास्टिक इन मतलब सीनिक ब्यूटी के हिसाब से आप Okay. जाओ, तो दोज़ आर वेरी डिफरेंट। अगर होमली भी फील करना है और कंट्री दूसरी कंट्री का भी फील लेना है तो यस, वी हैव यस, टू ऑफ विजिट। कोर्स। यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड लॉन्ग आपको स्टे करना है। किसी भी कंट्री में हम जाते हैं, किसी भी सिटी में जाते हैं, तो 2-3 डेज़ आर मोर देन इनफ, या 2-3-4 डे। बट लंदन अगर हम 15 दिन भी रुकते हैं, तो कोई कहीं पे भी बोरियत नहीं लगती। ओके दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ या दैट। आई गॉट योर पॉइंट। यस। वन लायन यू शुड नेवर बी गिवन द माइक। हु शुड नेवर बी गिवन द माइक? One lion, हु इज दैट वन लायन? so he will not leave the mic, no? या who should not be given the mic देखिए, because he keeps on speaking, no? So any lion member, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे लीडर्स जो बनते हैं ना, जो थोड़े से आगे जब हम पास गवर्नर बन गए, तो माइक छोड़ते ही नहीं, कोई भी नहीं छोड़ता। तो ऑल आर इन द सेम लाइन। तो कई बार क्या होता है, जब मीटिंग्स में जाते हैं, तो सुनीता भी मेरे को धीरे से इशारा करती है, कम बोलो, तो बहुत हो गया। तो वी ऑल आर द सेम। एनी लायन लीडर, दे डू नॉट लीव, So you have chosen yourself only यस, that यस, way. ना? मजा आता है। और कई बार टाइम स्लॉट दिया जाता है, कोशिश करते हैं उसी टाइम। तो आपने तो अपने आप को सेफ पोजीशन में रखी है, किसी का नाम नहीं लिया। One line that describes lionism for you. दैट इज द लोग जैसे बोलते हैं कि सर्विस, बट मैं ये समझता हूँ हैप्पीनेस, एज मैं तो खुद की भी और सामने वाले की भी। दैट इज द ओनली थिंग वी गिव एंड गेट फ्रॉम द लाइफ। That's true. यस। Sir, now I'm going to ask few questions. For this, you just have to show yes or no. ठीक, थैंक यू। If someone calls you the most stylish lion, would you deny it? Okay. Have you ever attended a lion's meeting just for the snacks? No. If I say your tea is more famous than you, then would you agree? Great. In both ways, you are in the safer side. Have you ever met a lion who talks more than you? Can you survive one full day without tea? No. Great brand promotion, sir. Do you think Lions politics is difficult than Indian politics? It is difficult. Okay. If your wife says you're always right, should we believe her? No. I hope Bhabi is watching this. Thank you, sir. So you have answered all the questions very honestly. एकदम दिल से sir आपने answer किया. Now we move to the next segment of our interview. Let's know more about our guest, Lion Shravan Chaudhary. How did your business journey begin? Was tea always your passion? यस रश्मि, ऐसा है, हर एक की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। सो व्हेन वी केम फ्रॉम जलपाईगुड़ी 1977, उसके बाद जैसे ये हमारी 4th जनरेशन बिजनेस है, एंड दैट टाइम आई वाज इन स्टडी, बट फॉर दिस नीड, ज़रूरत समझ सकते हो आप, तो उस समय बहुत चैलेंजेस थे। देन आई स्टार्टेड माय फादर्स बिजनेस, सपोर्टिंग हिम Okay. from since 1980. Nice. And it is more than 45 years. And after that, for 85 के बाद मैं थोड़ा सा directly involved हुआ 88 तक. Okay. And then I started this brand in 1995. 1995. Yes. Okay. What's one thing that makes City Gold special compared to other brands? The consistency and the Okay. quality. Okay. These are the most important Important thing, thing yeah. for any product. Mm. Any food product, if you have the consistency and the quality, the trust. Yes. We are selling the trust.
and we are maintaining that. That is the USP of City Gold. And you yourself carry City Gold tea only wherever you go. Yes. That's a big example. And not only me, my friends and who are traveling with me, they are always expecting that in the morning we'll get the So you only tea. make tea, no, sir? Yeah. Okay. When Mukesh Ambani mentioned your brand in one of his speeches, sir, what was your reaction? How So did you feel? actually, it was a great surprise for me. In Bengal Summit, Business Summit was there Okay. in 23 and again in 25. Both the times he spoke about City Gold brand. As a regional brand, he wanted to take as a national and international brand. That was the support from such a person. Yeah. You can understand that how much It happily. adds feathers to your. But I was not there and I did not know that he will speak like that. Okay. So मेरे को पता भी नहीं था, मैं कलकत्ता में ही था, Okay. लेकिन वो जब मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए, उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, सीआईआई के यहाँ के कुछ मेंबर्स थे, मनीष गोयल ने मेरे को फ़ोन किया, जो अभी हमारे कैबिनेट ट्रेज़रर है। Okay. बोला, भैया आपका नाम से मुकेश अंबानी ने लिया। तो आई थॉट दैट ही इज़ जस्ट जोकिंग। Yeah. उसके बाद जब मेरे पास वीडियो आया, तब जा कर के लगा। देन मतलब वो सरप्राइज़ भी रहा और उसके बाद मैं एक्टिव हो गया। पता नहीं क्या मिल गया। Then उसको मेंटेन करने का फिर आपके ऊपर एक. then we started working towards that direction, Okay. and it was a great opportunity for Yeah, us. it's a great opportunity, sir. Yes. What one challenge you faced early in life that shaped who you are today? एक्चुअली चैलेंजेस बहुत आई है और मैं तो यही बोलूँगा कि चैलेंजेस आना ही इंसान को ग्रूमिंग करता है और उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और अगर चैलेंज नहीं होगा तो क्या है, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकते। सो दिस इज़ द ऑपोजिट वैल्यू, मतलब ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, मैं हर वक्त विश्वास करता हूँ। सो जब भी चैलेंज आया, आई ट्राइड टू ओवरकम दैट विथ कॉन्फिडेंस। मैंने उसको चैलेंज लेकर के ही चला, चाहे वो लाइनिज्म हो, whatever in linism, in business, in family, everywhere, किसी की जिंदगी बहुत स्मूथ नहीं होती हर समय। Exactly. सो चैलेंजेस आएंगे और उसको आपको प्लानिंग से करना है। आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा उसमें विचलित नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी, मतलब काम। और जब आप उस चीज़ को ओवरकम करते हो तो डेफिनेटली यू आर इंक्रीजिंग योर पावर, इनर पावर एंड योर कैपेसिटी, और इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। Yes, sir, very true. So that's a lesson from Lion Shravan Chaudhary for all of us. You played the role of police inspector in one of the Bengali movies, sir. What was your experience? सो एक्चुअली दैट वाज मतलब पता नहीं वो कैसे, पहले क्या था कि आई वाज स्टडिंग इन बंगाली मीडियम। Okay. My throughout study was in medium was Bengali. So here in North Bengal, that time the shooting was there in Sebak, on everywhere, like 35-40 years back. This area was known as a very shooting area. Area. So film, the Tapash Rai and Shatabdi Roy, they were the most renowned film actress and actor of Bengali movies. Okay. So they came in Siliguri for the shooting of this hill area. Okay. So the director and producer, they were known to me. So they said, why don't you cast as a police inspector? And they kept my name also, Inspector Chaudhary. Okay. So the same Chaudhary title Yeah. was Chaudhary kept. Truth Police Yeah. Inspector. Yes. So I don't know what was my personality or not that time, but they took me as an inspector. I had a good shooting, outdoor shooting in Kali Jhoda and all this. So I enjoyed that time. These are the things. The with best memories of the life. Yes, yes. Yes. I had a great time. I enjoyed that. And You have the clip, sir? yes, I have. You have the clip. I have that also, the photographs, and I have kept in my library also. Okay, please share with us. Sure. Okay. So how did Lionism enter your life? Was it through friends or family? It was through my friend Naresh Periwal. Okay. I was connected as a business with him in 1995, and in 1996 he took me to Lions Club of Siliguri Tarai. बोला, श्रवण जी आप चलिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा. So that time before that I was associated in many business organizations like Siliguri Traders, Siliguri Auction Committee and all this, but I was not connected with any service organization. Okay. So I got this opportunity in 96 through Naresh Periwal. 1996.
What's the service project from your tenure that still makes you smile? Yes, that was the service project Tare Jami Pe. Okay, that was your So, first project. No, that was the project when Okay, yeah. after no in as a line member or as a governor. So both any. So governor, when I came from Las Vegas after taking my oath, so I had a dream that I'll do some service projects for the needy children, Okay. to underprivileged children. So that was the program was done by the 7 ladies clubs of our district, Tare Jami Pe. Tare Jami. So we served around 400 children at Sabin Kingdom. Okay. They were given the throughout the food, pose, entertainment, DJ, एंड दे फेल्ट लाइक एनीथिंग मीन्स अगर हमारे बच्चों को हम उसे 100 गुना भी अगर खुशियाँ देते हैं तो उतनी खुशी उनको नहीं मिलती जो खुशी आज उनको मिली थी। तो दैट वाज माय बेस्ट प्रोजेक्ट एंड माय ड्रीम प्रोजेक्ट और वो बहुत सक्सेसफुली हुआ था एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग। Yeah, definitely, sir. It's so touching. यस। We all know that the district conference in your tenure was a grand success. So, what was that inspired you that you organized the event in such a large scale? Actually, it was not my credit. It was the credit of entire my home club team. So सिलीगुड़ी तराई। So as you know, तराई के members जो चीज़ करते हैं तो वो जुनून के साथ करते हैं और उसका नाम भी जुनून था Yeah, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का। और उसमें ऐसा था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम मेंबरों को कैसे एंटरटेन कर सकें, क्योंकि लाइनिज्म क्या है, नॉट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द सर्विसेज, इट इज़ अबाउट द फेलोशिप एंड एंजॉयमेंट ऑल्सो। मैंने हरदम एक ही चीज़ कहा है कि यू डू लाइनिज्म and enjoy the Lionism. yeah. Stress You really later. enjoyed that Yes, conference. yes. We all enjoyed the So conference. I tried to enjoy myself also and the line members also. I Yeah, tried मुझे याद है सर जब आपके कॉन्फ्रेंस थी तभी मुझे पता चला डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस होती है। होती है। मतलब मुझे वही कॉन्फ्रेंस एकदम मेमोरेबल कॉन्फ्रेंस है मेरी। उस समय 21 क्लबें बनी तो क्लब के मेंबरों को लगा यही लाइनिज्म है एंड वो कनेक्ट आज भी उनका है और वो मेमोरीज जो है वो डेफिनेटली लोगों को मोटिवेट किया। Yeah. और जब आप एंजॉय करते हो, आप जुड़ते हो तो सर्विस अपने आप होने लगती है। Yes. सो दैट Yeah, वाज माय तो- एक्चुअल थॉट कि आप अगर जुड़े रहोगे तो काम करोगे। सो अगर जुड़ोगे नहीं, और जुड़ने के लिए देखिए काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको फेलोशिप चाहिए, नए-नए फ्रेंड्स चाहिए। यू शुड फील कि भई मैंने एक डिसीजन लिया लाइनिज़्म से जुड़ने का, सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई डिड नीड। Yeah, that's true. सो वो हमने कोशिश की एंड डेफिनिटली ये आप लोग मतलब मेंबरों का भी सहयोग रहा। इट वाज़ मोर देन 2000 मेंबर्स प्रेजेंट इन दैट कॉन्फ्रेंस एंड सक्सेसफुली होस्ट कर दिया। सभी मेंबर लगे रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। इट वाज़ रियली आई एन्जॉयड आल्सो। Okay, sir. Whom do you consider your mentor in Lanism and why? As a mentor, whatever in our district, we need any support or any kind of guidance. So I think I have always asked like GS Horaji, Okay. our PID. He is a mentor and he is a person. Whatever he is very knowledgeable. Okay. Not for in linism, but in general. उनसे कोई भी चीज़ की हम लोग अगर सलाह लेते हैं अच्छे से तो जुड़ी बहुत अच्छे से उनका सपोर्ट रहता है। आई हैव नेवर सीन हिम टू से नो। Okay. सो उनका मेरा बहुत अच्छा साथ रहा ऑलवेज। Okay. What one lesson Lions taught you that business never could? देखिए बिजनेस में हमने व्यापार किया, सब कुछ किया बिजनेस, बट लाइनिज्म टॉट अस द लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, द स्पीकिंग पावर। क्या था कि जब लाइनिज्म से जुड़े नहीं थे उससे पहले आज किसी माइक को पकड़ के बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी। आई वॉज रियली मतलब अफ्रेड ऑफ दिस स्टेज। Yeah, it happens with everyone. वो sir. मतलब वो एक डर सा रहता था कि कैसा लगेगा, क्या बोलेंगे। Yeah. और चैलेंज लेना, लीडरशिप देना, दूसरों को मोटिवेट करना। सो दिस वी लर्न फ्रॉम लाइनिज्म। टाइम मैनेजमेंट, आज मेरा अगर दिन भर घर पे डेली बात होती है, भाई आप कैसे मैनेज करते हो, सो आई मेक माई टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली
जो भी टाइमिंग है उस टाइम के हिसाब से. These all we have learned from Lionis. Okay, that's great. Yes. So, if you had to give one success mantra to the younger lion, what would it be? So, to the young lions or any young people, जैसा कि आपको पता है कि लाइनिज्म में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारी रिटायरमेंट के बाद हम लाइनिज्म करेंगे, लेकिन इन माय टेन्योर और आई हैव ट्राइड टू मोटिवेट यंग पीपल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूथ. व्हाई? क्योंकि उनको एक चीज़ मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, बिजनेस और एनीथिंग दैट इज़ योर टॉप प्रायोरिटी, उसके अलावा भी आप लाइनिज्म में सर्विस के साथ जुड़ सकते हो, बिकॉज इफ़ यू मैनेज योर टाइम. सो और किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस तुरंत नहीं मिलती. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. समय लगता है, चाहे वो बिजनेस कर लो, चाहे लाइनिज्म में आप लीडरशिप में आओ, तो यू हैव टू ग्रो. कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं आते ही बहुत अच्छी लीडरशिप मिल जाए. इट विल डिपेंड take एज पर योर कैपेबिलिटी एंड योर कंसिस्टेंसी. आप कितने उसके अंदर अपने आप को देते हो. तो मैं सभी को यही कहूँगा, अपना काम करते रहो, सक्सेस मिलेगी अपने आप. और जब जब समय आएगा आपको अपने आप अब कर्म recognition करो, फल की कामना करो। कर की इच्छा मत करो, मगर निस्वार्थ भावना से काम करो. बिल्कुल। इफ यू आर डूइंग लाइनिज्म, ठीक है, अपने बिजनेस का लॉस करके आपको लाइनिज्म नहीं करना है. वॉट एवर यू आर डूइंग, you have to balance your business, profession, family, and Lionism. Yes, Everything and that's has to very be taken. difficult to balance, sir. Yes, and that is the real thing that is required. हम कई बार क्या होता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, Yes, और वो exactly. एक ही चीज़ में हम लोग चले जाते हैं. Lionisim में चल जाते हैं, फैमिली हैम्पर हो जाती तो वो जगह आपको बैलेंस करना है. Yeah. That is very important. Yeah, it's very difficult to balance, na sir. That's why everyone is afraid. यही of तो हम doing सीखते it. हैं, लाइनिज्म से यही सीखते हैं, हाउ टू बैलेंस. आज जितने बड़े लीडर हैं, देखिए समय सबके पास एक ही है. वी ऑल हैव 24 आवर्स हैं. तो कुछ लोग तो बहुत काम करते हैं उसी 24 घंटे में और खूब खुश भी रहते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल. और उतनी टाइम में हम लोग नहीं करके भी खुश नहीं हो पाते. सो Right. इट डिपेंड्स हाउ यू How you मैनेज, manage. हाउ यू बैलेंस. Yeah. Okay. So how would you like people to remember you in Lionism? As a leader, a friend, or a mentor? मेरा तो यही कहना है, एक अच्छे इंसान के तौर पे लोग जाने. एंड अगर कहीं पे भी कोई भी अच्छी बात आए, तो एज एन एग्जाम्पल आपकी जगह बने कि भाई ठीक है, कहीं पे भी चाहे वो आपके एथिक्स की बात करें, चाहे आपके प्रिंसिपल की बात करें, चाहे आपके मेंटरशिप की बात करें, दैट्स रिस्पेक्ट. क्योंकि देखिए, रिस्पेक्ट हमारी डिमांड करने से नहीं होती. रिस्पेक्ट इट इज अर्न. अपने आप आती तो वो रिस्पेक्ट हमें मिले, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए. क्योंकि हम 100 अच्छा काम कर लें, एक अगर गलत करते हैं तो वो ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे नेचर और कैरेक्टर के ऊपर. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जब भी काम करें, कोई भी काम ऐसा नहीं हो जो हमें गलत लोग बोल पाए. एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ टाइम अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा करते हो कि लोगों को प्रोत्साहन करते हुए या लोग मोटिवेट होते हैं आपसे, दैट इज योर अचीवमेंट. दैट इज द बेस्ट पार्ट इफ यू आर नोन फॉर दैट. Yeah, very true, sir. You have attended the business executive course of IIM Ahmedabad. Yes. So, what was your experience? Who are the most studious, funny, or talkative students from Siliguri? Yes, we had a batch of 36 line members, and it was a great initiative. ये मेरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है. मैं सबको बोलता हूँ, लर्निंग इज नॉट वन टाइम थिंग, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सीखने की कोई एज भी नहीं होती और कोई समय नहीं होता. Yeah. So having the age of 60, I initiated. Vishal took the lead, विशाल जैन, और उसने मेरे को कहा तो मैं बोला पहला नाम मेरा लिखो. सो उसके बाद सब लोग आए, जितने भी मेंबर्स थे उसमें सब 25 से लेके 35-40 साल के थे. बट स्टिल आई एंजॉयड बिकॉज दे आर कंपनी. क्योंकि जितने यंग मेंबरों से मैं मिलता हूँ या उनके साथ जाता हूँ, तो आई ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम. वो एनर्जी उनके अंदर जो आज देखिए कितना भी हो, वो हमारे से बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत मतलब फास्ट है. आज हम लोग क्या है कि पुराने समय के हिसाब से चल रहे हैं. उन वो You are like the iPhone, eh? No, said. नहीं, फिर भी आज नई चीज़ को अडॉप्ट करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता जितने आज की जनरेशन. तो उनसे सीखते हैं.
वी एंजॉयड, हमने फन किया, हम लोगों ने गाने वाने गाए, मतलब एवरीथिंग वी डिड इन IIM अहमदाबाद। इवन जो हमारे मेंटर्स वहाँ के जो फैकल्टीज थे, तो इतने एज डिफरेंस था कि वो हमारे से छोटे भी थे, तो वी वेर लाइक फ्रेंडली। और नई चीज़ बहुत सीखने को मिली, जो हमने पढ़ाई की आज तक, जो भी हमने सीखा वो एकदम एक स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट, हाँ, ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ फिर से मेरे को 30-40 साल बाद एक स्टूडेंट लाइफ मिली, एंड दैट वाज टोटली डिफरेंट। टोटली आई ओपनर था, हम लोगों के लिए बहुत सीखने को मिला, एंड आई इम्प्लीमेंटेड दैट इन माय बिजनेस आल्सो। अभी क्योंकि केस स्टडीज जो मिली, जो बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे क्या काम करती है, हमारे बिजनेस में तो क्या है कि हम लोगों ने जो सीखा उतना ही लागू किया। वी वर नॉट वेरी प्रोफेशनल, सो सीखने को भी मिला, एंटरटेनमेंट मिला, एंड इवन जो सबसे छोटा था वो भी हम लोगों के साथ एंजॉय किया, बिकॉज वी मेड देम वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि क्या होता है, आप अगर इतने लोगों के साथ जाते हो, अगर पूरा बैच कंफर्टेबल नहीं होगा तो डिस्टेंस बनी रहती है, मजा नहीं आता। सो आई ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल विथ माय एज, कि भाई मैं एज में बड़ा हूँ लेकिन सोच में बड़ा नहीं तुम लोगों से, सोच में। सबसे एड्रेस से क्या? So I was the eldest, yeah. ओके। So I enjoyed, and they also felt very comfortable. तो सर सबसे नॉटी स्टूडेंट कौन था वहाँ पे? नॉटी स्टूडेंट नाम लेकर के तो बता नहीं सकते, लेकिन बहुत थे उसमें, ओके। बहुत थे। और सब अपने आप में अपने बिजनेस प्रोफेशन में दे आर वेरी स्ट्रांग, इवन दे आर डूइंग लाइनिज्म इज वेरी स्ट्रांग। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। मैं तो बोलूंगा अगर मौका लगे तो इसमें जरूर जाना चाहिए। ओके। सर डू यू वांट टू शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ? What type of incident? Any incident you want to share with us? Any, it can be from the Lionism, it can be your personal, anything. नहीं, पर्सनल में तो मेरे मेरे एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का Okay. इन बिजनेस, मतलब जैसे ये एक सीखने की चीज़ थी। 2001-2 में हमारे यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, अजय अग्रवाल। सो उसकी उनकी कहानी मैं सब जगह बताता हूँ, एंड इट वाज रियली वेरी मोटिवेटिंग भी है और बहुत कुछ सीखने की है। जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है तो हम नहीं जाते, हम देखते हैं इसमें लोग सक्सेसफुल हैं तो इसी में जाते हैं। तो हट के आपको मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। आपने स्टीव खेरा का भी सुना होगा, Yeah. द विनर्स डू नॉट डू द थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। Yeah. सो डिफरेंट तरीके से करने की जो चैलेंज है वो लेना। तो अजय अग्रवाल जी ने एक कहानी सुनाई थी किसी कंपनी की, Yeah. कि उसने जूते बेचने के लिए किसी इसको भेजा, सेल्समैन को किसी आइलैंड में भेजा। Okay. वो सेल्समैन जाके देखता है कि कोई भी वहाँ पे जूते नहीं पहनता, तो कंपनी को बोला यार तो जूते पहनने का रिवाज ही नहीं है, तो कंपनी बोली वापस आ जाओ, जूते बिकेंगे कैसे, कोई पहनता ही नहीं है। 5 साल बाद एक कंपनी ने वैसे ही एक सेल्समैन को भेजा, वो सेल्समैन बोला कि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं, आप एक काम करो जहाज भरकर एक जूते भेज दो, हमारे जितने स्टॉक पड़े हैं सबको पहनना सिखा दूंगा। सो नजरिया, एंड दैट वाज द डे, 2001-2 की बात कर रहा हूँ, एंड इट वाज अ ग्रेट, मतलब मेरे को एक लर्निंग मिला, एंड आई टूक दैट चैलेंज फॉर माय मार्केट। लोग बोलते हैं कि सिलीगुड़ी में पैकेट नहीं बिकती, यहाँ खुली चाय, तो चाय का रीजन है, चाय ग्रोइंग एरिया है। आई स्टार्टेड माय पैकेट इन सिलीगुड़ी, जहाँ हमने 2 किलो पहले दिन बेची, एंड टुडे वी आर द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन सिलीगुड़ी। ओनली दैट वाज द मोटिवेटिंग पॉइंट। एंड मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। When there's a will, there's a यस यस, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने से यू विल बी द पायनियर, यू विल बी द लीडर। और ये आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। देखिए, हिम्मत तो करनी पड़ती है, सक्सेस और फेलियर जो है ना, वो इट विल वो समय की two बात sides है। of the coin. Yeah. यस, सो दैट वाज द ग्रेट टाइम मेरे लिए, मैं लाइफ टाइम इसको याद करता हूँ, हर मोटिवेशन पे लोगों को ये बात मैं शेयर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा सर आपने एकदम। काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच है और हम अगर इस पॉइंट को याद रखें तो कोई भी जीवन में काम ये मेरे मेरे लाइफ को मैं पूरे मतलब टर्निंग पॉइंट था, एंड दैट आई यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस, एंड जहाँ पे जो चीज़ नहीं थी वहाँ पे हम प्रेजेंट हुए तो हमारी जगह बनी। Yeah. बिल्कुल। दैट वाज द प्लेस। थैंक यू सर। सर एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? यस, ऑडियंस को यही कहूँगा कि लाइफ इज़ वेरी
प्रेशियस और इसको हमें हर समय एंजॉय करते रहना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के दिन हमारे जो यंग टीनेजर्स हैं, पहले हम सुनते थे कि एक एज के बाद इंसान बहुत स्ट्रेस में आता है, डिप्रेशन में आता है। अभी यूथ क्या है, ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण भी बहुत ज़्यादा आजकल सोच में रहता है और उनको एक कंपटीशन लगी रहती है कि हम कैसे लोगों से आगे जाएं। सो इट विल टेक टाइम, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और सक्सेस क्या है कि तुरंत नहीं आती है, और लेकिन आज समय में लोग चाहते हैं कि सक्सेस मेरे को तुरंत मिले। एंड इफ़ यू गो बैक, आप देखिएगा कि किसी भी सक्सेस के पीछे उनकी 30 साल 40 साल की एक बैक हिस्ट्री है, चाहे कोई प्रोडक्ट। आपने पहले का हाँ, कंसिस्टेंट यस, वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। आज हमारा ब्रांड अगर 30 साल पुराना है, उसके या पीछे 72 ईयर्स इन टी इंडस्ट्री, तो एक कंसिस्टेंट, एक बहुत स्ट्रगल रहा है, वो किसी को नहीं दिखेगा। सक्सेस आज की दिखेगी। तो आज की जो यंग जनरेशन है उनको तुरंत चाहिए कि वो कंपैरिजन में खड़े हो, बट इट टेक्स टाइम और वो पेशेंस के साथ उनको काम करना होगा। हर चीज़ में अगर वो उस तरीके से करें तो सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ माय मैसेज टू एंटायर यूथ कि समय लगेगा, लेकिन अपना काम करते रहिए एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद पेशेंस। और अगर जल्दी सक्सेस मिल जाती है, दैट इज आवर लक, यहाँ पे एक्स्ट्रा सक्सेस मिल Yeah. गई। बट हमें अपने डायरेक्शन में ईमानदारी से काम करना है एंड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली योर प्रोडक्ट क्वालिटी बट योर क्वालिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आज के दिन किसी भी चीज़ को आप लेते हो, सो उसका प्रोमोटर कौन है, उसके बैक में उसका जो है ओनर कौन है, उसके पीछे भी उसके प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। तो विद द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी, आपकी ब्रांड या आपके भी जो अगर इमेज अच्छी है, तो डेफिनेटली लोगों को एक विश्वास होगा कि हाँ भाई, इन्होंने ये चीज़ किया है तो ये गलत चीज़ नहीं देंगे। दैट ट्रस्ट हैज़ टू बी टेकन केयर। मतलब जो करे ऑनेस्टी के साथ करे तो यूल गेट सक्सेस। हाँ, हाँ। नहीं, और साथ-साथ उसके साथ अपनी जगह भी अच्छे रूप में ही बनानी पड़ेगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ कि जैसे टाटा के कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं या टाटा की बात करें, तो हमारे मन में एक फीलिंग आती है, दे हैव सम पैट्रियोटिक फीलिंग। वो उनके कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं है जो हार्म करते हैं हमें। और दूसरी बात है, हर चीज़ में ये आता है कि नहीं, उनका वो जो काम करते हैं वो हर समय जेन्युइनली हमारी सोसाइटी के लिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेके चलते हैं। ऐसे बहुत से हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया हूँ। तो वो जो इमेज बिल्डिंग है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइनिज्म में भी वही चीज़ है। अगर आप लाइनिज्म करते हो तो कहीं पे भी आपका नाम अगर आता है तो ये इज्जत से आए कि नहीं, वो अगर लीडर है तो डेफिनेटली ही इज डूइंग फॉर द ग्रेट मोटिवेशन। उनका एक एथिक्स है, वो अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, तो लाइनिज्म में उस तरीके से उनका नाम होता है। तो एवरीवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, वेरी ट्रू। सो यही मेरा मैसेज है, अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए, लगन से करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। सर आपने प्रॉमिस किया था ऑडियंस को एक गाना सुनाएंगे सर, प्लीज। सारी ऑडियंस भाग जाएगी। तो इट्स नॉट एज ए सिंगर, बट जनरली क्या होता है, कुछ कुछ गाने होते हैं मस्ती भरे होते हैं, तो जहाँ भी होते हैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ वो एंजॉय करें। तो ये गाना सुनाना चाहूँगा, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर यू सैंग वेल। यस, थैंक यू। भाभी ने बताया घर पे एक ग्लास भी पानी का नहीं उठाते हैं भैया, लेकिन जब पार्टी में कहीं भी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तब ग्लास भी वो लेते हैं, चाय भी बना देते और सबको पकड़ा भी देते हैं। भाभी को पकड़ा देते हैं, भाभियों को देखकर ठीक चाय बना ले से। सो दिस इज मतलब क्या होता है ना कि सुनीता का ये मजा भी हम लोग लेते रहते हैं और सब भाभी लोग भी मजाक में भी उनके सामने ही मेरे को बोलते रहती है, भैया वो दीजिए ना, वो दीजिए ना, जस्ट टू मेक अ डिफरेंट, मतलब वो माहौल को बनाने के लिए। तो कहीं भी कोई गाने का प्रोग्राम होता है तो उन लोगों की डिमांड रहती है, और
दिस इज माई मोस्ट फेवरेट गाना जो मैं एक ही गाने के ऊपर टिका हुआ हूँ, इतने सालों से चल रहा है, दूसरा गाना भी नहीं आता मेरे को। तो वो क्यों नहीं सुनाए? एक प्यार का नगमा है, सर प्लीज ये बहुत अच्छा है। सो आई लाइक दिस सॉन्ग। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना, और मैं ये पूरा गाता हूँ और अंत तक आता है। इसके एक कड़ी है जो मतलब लास्ट पैरा है, वो बहुत पसंद है मेरे को। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये जिंदगी का सार है इस पैरा में, या कि तूफान को भी आना है और बहुत सी चीजें वो है, लेकिन परछाइयाँ रह जाएगी, जिंदगी इसी का नाम है। तो ये मेरे बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग बहुत मीनिंगफुल मेरा इसमें एक पैरा है, तो मैं इसको बहुत मतलब पसंद। बहुत अच्छे से आपने गाया और बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है सर। पुरानी गानों का बात ही कुछ अलग है। यस यस जब भी कोई पार्टी होती है तो आप चाहते हो तो सारी भाभी आपके चारों तरफ सब आपको ही पूछती हैं और आपके चारों तरफ घूमती हैं और भाभी एंजॉयज दैट। ये सुनीता का सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं उनका नहीं है, हम तो सबका सोचना है। नहीं, बट वी एंजॉय, और वो लोग भी जानबूझ के ना, हमारी भाभी लोग जो है, मतलब वो लोग मजाक करने के लिए, सुनीता को चिढ़ाने के लिए भी करती है ऐसा। हाँ, या वो बोलती है उनको ये चिढ़ाने के लिए। तो वो क्या है कि चिढ़ाने के लिए भी करते हैं, ताकि वो उसको लगे कि हाँ भाई कुछ फन हो रहा है, उसको पता भी है, तभी वो आपको वो बहुत बताएगी। एंजॉय करती हैं वो He मोमेंट enjoys एंजॉय। that moments, he enjoys also, that's why this is the funny moments। और देखिए दोस्ती में, फ्रेंडशिप में, कहीं भी हम लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, अगर ये यही सब तो माहौल नहीं होता तो बिल्कुल मजा ही नहीं है, फिर तो सीरियसनेस आ यही तो जाती। फन है लाइफ में। तो एवरी मोमेंट यू शुड पिक अप सम humors, यस and that is the way of enjoying। यस सर। सो ये सब चलते रहता है, खूब मजा आता है, बल्कि हम लोग दिखा दिखा के कुछ कुछ करते रहते हैं। कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं तो फट से देखते हैं कि भाई कान खड़े हो जाते हैं। दीज आर द थिंग्स, इट हैपेंस ये एवरीवेयर। थोड़ा तड़का रहना और चाहिए और लाइफ में। जो उन सब चीजों को पॉजिटिव लेके चलता है ना, वही फिर किसी भी ग्रुप में एंजॉय कर यस पाता है। बिल्कुल। सर आपने सारे आंसर्स को बहुत ऑनेस्टली दिया और हमें बहुत मज़ा आया इस पूरे पॉडकास्ट में। थैंक यू Thank you so much, Rashmi, for giving me this opportunity to speak with with you. फॉर मी No, no, टू no. टेक योर इंटरव्यू। Definitely, you have a great presentation, and the questions were fantastic. And you gave me the opportunity to speak with the audience and convey my message to them. And I'm really honored. Thank you so much. Wish you all the best. Join us next time for another story of Lionism leadership. Until then, keep smiling, keep serving, and keep roaring.